हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Application is for bringing on record legal heirs of appellant Ranjit Singh full stop. The applicants are claiming the property on the basis of a will dated 4/8/1992 full stop. This application is contested by learned counsel for the respondent by contending that even as per the will, applicants do not get right in the property full stop para. Since the matter has been adjudicated upon on merits and counsel has been permitted to argue, therefore, this application is disposed of keeping the aforesaid issue pending full stop para. Defendant appellant is in the regular second appeal against the judgment passed by the learned first appellate court, reversing the judgment of the trial court and granting a decree for a specific performance of the agreements to sell dated 7/7/1976, 19/1976 and 23/5/1977 full stop para. Although a coordinate bench had allowed the appeal, wide order dated 28/11/2013, however, a review application was filed and the same honorable judge had issued notice full stop. Thereafter, review application was dismissed for non-prosecution full stop. Application for restoration was also dismissed full stop. Appeal was filed before Honorable the Supreme Court and wide order dated 29/6/2016, High Court was directed to hear the review application on merits full stop. Thereafter, review application was heard and wide order dated 23/1/2019, it was decided that the appeal is required to be reheard on merits because there was patent factual error in the judgment. That's how this appeal has come up for final disposal full stop para. In the considered view of this court, the questions of law which need consideration are as under para. First, whether an intended purchaser before execution and registration of the sale deed is entitled to redeem the property which is subject matter of agreement to sell from third party para. Second, whether endorsement/extension of time for execution and registration of the sale deed amounts to novation of the contract and therefore, original agreement is not required to be performed para. Some facts would be required to be noticed full stop para. Total area which was subject matter of agreement to sell is 183 square yards, house number 413/4, situated at Nabha Gate, Patiala full stop. A part of the property was mortgaged with Shri Ishar Singh through these separate mortgage deeds dated 5/10/1971, 13/12/1971 and 16/12/1974 against total mortgage money of rupees 12,500 full stop. Thereafter, defendant appellant agreed to sell entire area, that is
183 square yards in favor of the plaintiff respondent. Wide agreement to sell dated 7/7/1976 for total sale consideration of rupees 40,000 on receiving earnest money, that is rupees 8,000 through bank draft, full stop. The target date for execution and registration of the sale deed was fixed with the agreement of the parties as 1/6/1977, full stop. It was agreed that the possession would be delivered at the time of registration of sale deed, full stop. On 1/9/1976, another agreement was executed and the plaintiff had paid another sum of rupees 12,000 to the defendant, full stop, over. तो फ्रेंड्स ये 95 या 93 की स्पीड का डिक्टेशन है, ठीक है। एक आध जगह थोड़ा सा 1976 बोलते समय दो जगह दिक्कत आ गई, बाकी ओवरऑल डिक्टेशन सही था। इसमें नंबर्स ज़्यादा आए हैं, डेट ज़्यादा आई है और करेंसीज आई हैं, मतलब पैसे आए हुए हैं, ठीक है। बाकी ईशर सिंह आया है, तो ईशर सिंह थ्रो द लाइन SH बनाइए और डाउनवर्ड आर या अपवर्ड आर कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डाउनवर्ड आर ले जाने में हाथ नीचे जाता है, इसलिए अपवर्ड आर करने के लिए कह रहे हैं। नाभा गेट, नाभा भी आराम से बन जाएगा। N का स्ट्रोक एबव द लाइन N और B को काट दीजिए बाहर निकालने के लिए। नाभा पटियाला पूरा बनेगा PT अपवर्ड L और दैट की वोवल आफ्टर में पटियाला के लिए। और कोई नाम नहीं आए। अच्छा देखिए यहाँ पे ट्रायल कोर्ट कैपिटल से कोर्ट बना हुआ है, ठीक है। ट्रायल कोर्ट स्मॉल में ही आता है, लेकिन अब पंजाब हरियाणा में देखिए सब लैंग्वेज के ऊपर होता है, जज साहब कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। जब भी स्टेनो जो होता है डिक्टेशन लेके जब करेक्शन कराने के लिए जज के पास जाते हैं, स्टेनोज उनके जो भी होते हैं, तो जज मैटर को करेक्ट करते हैं। तो कुछ जज अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कह देते हैं कि देखो जहाँ जहाँ कोर्ट आया है वहाँ कैपिटल कर दो, ठीक है। तो ये ड्यूटी के बाद मतलब जब जॉब लग जाती है तब का ये सीन होता है। तो इसी वजह से यही कारण होता है कि स्टेनोज जो होते हैं वो जब डिक्टेशन जजमेंट टाइप कर देते हैं जज के अकॉर्डिंग, तो वो बाद में पब्लिश हो जाता है, ठीक है। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि देखिए इसमें तो ऐसा है, बुक में ऐसा लिखा है। क्या बुक कोई ब्रह्मा की लकीर थोड़ी ना हो गई है कि जो लिख दी है वो सही है, ठीक है। हर जगह अलग अलग जजेस अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जजमेंट टाइप कराते हैं, कैपिटल स्मॉल करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे स्टेनो जो भी लिख के दे देता है जज उसको करेक्ट ही नहीं करते हैं, बस लैंग्वेज करेक्ट करते हैं कि भाई इसने क्या लिखा है, पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस, या लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करना है अगर, वो सब करेक्शन करा के बाकी ओके कर देते हैं। तो उस केस में स्टेनो अपने इच्छा से जो लिखता है वो छप जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के यही चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा घबराइएगा मत। ट्रायल कोर्ट स्मॉल में होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पंजाब की जजमेंट में ट्रायल कोर्ट में C कैपिटल कर दे रहे हैं और ट्रायल का T स्मॉल कर दिए हैं। तो आप ये बुक है पंजाब हरियाणा की, वहाँ के जजेस किस तरह से उनकी लैंग्वेज क्या है, इसीलिए हम PDF डाल देते हैं ताकि आपको समझ में आए। हमारे अकॉर्डिंग ट्रायल कोर्ट स्मॉल होता है, ओके। और सुप्रीम कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट, ये सब कैपिटल्स में होंगे। और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट देखिए लर्नेड इसमें स्मॉल है, ठीक है। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट कैपिटल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लर्नेड हमेशा फुल स्टॉप के बाद जब आता है तभी कैपिटल्स में जाता है, ठीक है, अदरवाइज वो स्मॉल में रहता है, ठीक है। विल, ऑन द बेसिस ऑफ विल क्यों कैपिटल बना है इसमें, क्योंकि विल एक तरीके से वसीयत हो गई, वसीयत को डिनोट कर रहा है, इसीलिए वो कैपिटल्स में है, ठीक है। ये है नाम, प्रॉपर नाउन तो सब कैपिटल्स में ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जहाँ पे भी एंड दिस कोर्ट, ऑफ दिस कोर्ट, बाय दिस कोर्ट, बिफोर दिस कोर्ट, ठीक है, ये सब जहाँ दिस कोर्ट आता है वहाँ कोर्ट कैपिटल में होता है, अदरवाइज स्मॉल में होता है। बाय द कोर्ट, एंड द कोर्ट, ये सब स्मॉल में कोर्ट होता है, ठीक है। और रिस्पोंडेंट नंबर 1, रिस्पोंडेंट नंबर 2 अगर आता है तो कायदे से देखा जाए तो रिस्पोंडेंट में R कैपिटल होना चाहिए, नंबर का N तो कैपिटल होता है। लेकिन पंजाब हरियाणा की जजमेंट्स में रिस्पोंडेंट नंबर 1 में रिस्पोंडेंट का R स्मॉल होता है, ठीक है। डिफेंडेंट नंबर 1 में डिफेंडेंट का D स्मॉल होता है, ठीक है। ये सब जजेस के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको कैपिटल भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर को N आपको कैपिटल में रखना है, ठीक है।
और इसके अलावा और तो कुछ नहीं, वीडियो लंबी हो रही है। चलिए फिर इसको यहीं ख़त्म करते हैं। एक और डिक्टेशन हम आपको देने वाले हैं, तो इसको आप ट्रांसक्राइब करिएगा और बताइएगा कैसी डिक्टेशन लगी है। कमेंट में लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम से डिक्टेशंस मिल जाएं। बहुत से लोग हैं जिनको डिक्टेशंस मिलती नहीं हैं। ठीक है, एग्ज़ाम बचा हुआ है, कम दिन बचे हुए हैं, डिक्टेशन लो भाई। चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली डिक्टेशन में। थैंक यू सो मच।